میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ، یہ عربی متن اور اس حدیث مبارکہ کے راوی کوئی عام ہستی نہیں، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے، فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، فرمایا لوگوں عمر کی یہ شان ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو عمر کے اندر یہ خوبیاں تھی کہ اللہ عمر کو نبی بنا کے بھیج دیتا، لیکن فرمایا اللہ نے مجھے خاتم النبیین بنا کے بھیجا ہے، اللہ نے مجھے ختم نبوت کا تاج پہنا کے بھیجا ہے، میرے بعد اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں۔ مسلم شریف میں 93 نمبر حدیث مبارکہ ہے، یہ ابو داؤد شریف میں بھی ہے، ترمذی شریف میں بھی ہے، نسائی شریف میں بھی ہے، ابن ماجہ شریف کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ ابن ماجہ شریف کے اندر اس حدیث کا نمبر ہے 63 اور یہ انٹرنیشنل نمبر ہے، سرچ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ کی بڑی عربی عبارت مکمل ایک صفحہ آپ کے سامنے ہے، یہ مکمل حدیث مبارکہ لکھی ہوئی ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ اگر میں اس کی لمبی عبارت کی طرف جاؤں گا تو ہمارا درس قرآن کا بڑا محدود وقت ہے، وہ ہاتھ سے نکل جائے گا۔ میں تھوڑا تھوڑا جہاں ضروری محسوس کروں گا آپ کو عربی کے الفاظ بھی سناتا جاؤں گا، کوشش کروں گا کہ اس حدیث کا ترجمہ میں لفظ بلفظ آپ تک پہنچانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، شدید سفید کپڑوں والا اور شدید سیاہ لمبے بالوں والا آدمی آیا۔ ہم پڑھ کے آ رہے ہیں کہ کل جو ہم نے پڑھا تھا اسلام اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، ایمان کی دولت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، آج ہم اس کا اگلا حصہ پڑھ رہے ہیں کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے۔ اس پہ غور کریں گے تو پھر آپ کو اس حدیث مبارکہ کا بہت لطف آئے گا اور بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے؟ آئیے یہی سوال میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا گیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں شدید سفید کپڑوں والا اور شدید سیاہ لمبے بالوں والا آدمی آیا، اور اس آدمی کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ یعنی ایک ہوتا ہے کہ پتہ چلے کوئی بندہ سفر کر کے آ رہا ہے، اس کے چہرے پر سفر کے آثار بھی نظر نہیں آ رہے تھے، اور ہم میں سے کوئی بھی اس آدمی کو نہیں جانتا تھا۔ سفید کپڑے تھے، سیاہ بال تھے، دیکھنے میں چہرے پر کوئی سفر کے بندہ لمبا سفر کر کے آیا ہو، کسی دیہات سے آیا ہو، یہ آثار بھی نہیں تھے، اور ہم میں سے کوئی آدمی اس شخص کو جانتا بھی نہیں تھا، حتیٰ کہ وہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچا۔ اس نے آ کر کہا السلام علیکہ ایھا النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سوال کیا، اور اسی حدیث کے دوسرے صفحے پہ راوی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے جناب عبداللہ بن عمر بھی ہیں، وہ بھی کہتے ہیں، وہ کہتے ہوئے شخص آیا، اس نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو الگ سلام کیا، پھر اس نے باقی صحابہ کی جو محفل تھی ان کو الگ سلام کیا، صحابہ کو کہا السلام علیکم، سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا السلام علیکم یا رسول اللہ، پھر اس شخص نے کیا کہا ثم قال ادنو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اجازت ہو تو میں آپ کے قریب آ جاؤں؟ فادنا دنوتن او دنوتین، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فقال ادنہ، آگے قریب آ جاؤ۔ وہ شخص تھوڑا سا آگے بڑھا اور پھر ثم قام مؤکرا لہ، وہ شخص سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب میں پھر کھڑا ہو گیا، پھر تھوڑی دیر کے بعد کہتا ہے قال ادنو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں آپ کے قریب آ جاؤں؟ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فقال ادنہ، وہ شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اور قریب ہو گیا، اجازت ملی قریب آ جاؤ، اور قریب ہو گیا۔ کتنا قریب ہوا؟ حتی جلس فلصق رکبتیہ برکبتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اتنا قریب ہو گیا کہ اس کے گھٹنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھٹنوں کے ساتھ جا کے مل گئے۔
यानी वो इतना हुजूर अलैहिस्सलाम के करीब होकर बैठ गया। सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घुटनों के साथ अपने घुटने मिलाकर बैठ गया। उसने अपने हाथ रानों पर रख लिए, ऐसे बाअदब होकर वो शख्स बैठ गया और कहा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम के बारे में मुझे बताएं। अब आया हमारा कल वाले दर्स का दूसरा हिस्सा। अल्लाह ने हमें इस्लाम की दौलत दी, ईमान की दौलत दी। अब वो शख्स पूछ रहा है, या रसूल अल्लाह मुझे बताएं इस्लाम क्या है, इस्लाम के बारे में मुझे बताएं। फ़अख़बिरनी, मुझे बताएं इस्लाम क्या है। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इस्लाम ये है। अब सारों की तवज्जो है जरा, बहुत कीमती बातें हैं। हमें पता तो चले कि इस्लाम है क्या, हमें यह भी पता चले कि ईमान क्या है। एक मर्तबा हुसूल बरकत के लिए सारे कहें सुभान अल्लाह। इससे सुस्ती दूर होती है, तवज्जो बढ़ती है और अल्लाह की पाकी बयान होती है। कहा, या रसूल अल्लाह मुझे बताएं इस्लाम क्या है। अब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बताया, फरमाया इस्लाम यह है कि तुम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही दो और नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो और रमजान के रोजे रखो और अगर अल्लाह तुम्हें ताकत दे तो तुम हज भी करो। ये इस्लाम है। उस शख्स ने दूसरा सवाल कर दिया। जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बताया ना कि ये इस्लाम है कि तुम कलमा पढ़ो, नमाज पढ़ो, ज़कात दो, रमजान के रोजे रखो, अल्लाह तुम्हें ताकत दे तो तुम हज करो, अब आप भी हैरान हो जाएंगे। वो शख्स कहता है, कौला सदक़ता, आपने सच फरमाया, आपने सच फरमाया। फतअज्जबना लिक़ौलिही सदक़ता कअन्नहु यअलम। सहाबा कराम कहते हैं, जनाब उमर पाक कहते हैं, अब हम हैरान हो गए तज्जुब में पड़ के कि ये तो पूछने आया था, इसने तो पूछा है, हुजूर ने बताया है, इसको कैसे पता कि इसने तस्दीक कर दी। आया तो ये सीखने था, आया तो पूछने था। अगर आप में से कोई शख्स मुझसे कोई सवाल पूछे, मैं उसको बताऊं तो आगे से वही बंदा तस्दीक भी कर दे, हाँ काजी साहब तुसी सही आख्या, तुसी बिल्कुल लफज बलफज सही आख्या। अब आप सारे हैरान हो जाएंगे ना, ये तो सवाल पूछ रहा था, इसका मतलब है इसको पता था, ये तस्दीक जो कर रहा है। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते, हम हैरान हुए, फतअज्जबना, हमें तज्जुब हुआ, ये शख्स पूछता भी है फिर तस्दीक भी करता है। उसने दूसरा सवाल किया, कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे यह बताएं कि ईमान क्या है। पहले पूछा इस्लाम क्या है, अब पूछा ईमान क्या है। तो मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ईमान यह है कि तुम अल्लाह पर, उसके फरिश्तों पर, उसकी किताबों पर, उसके रसूलों पर, आखिरत के दिन पर और खैर और शर की तकदीर पर ईमान रखो। उस शख्स ने फिर कहा, क़ाला सदक़ता, आपने सच फरमाया। फिर उसने जब कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने बता दिया इस्लाम क्या है, यह भी बता दिया ईमान क्या है, अब यह भी बता दे कि एहसान क्या है। हमारे लिए यह बहुत बड़ा सबक है, याद रखिएगा, एहसान क्या है। तो मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, एहसान यह है कि तुम अल्लाह की इबादत इस तरह करो जैसे तुम अल्लाह को देख रहे हो। यार गुफ्तगुएं तकरीरें होती हैं, उनका एक अपना अलग तरीका है। जो मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ुबान मुबारक से अल्फाज निकले, वो लफज ब लफज सुने तो दीन का मजा ही कुछ और है। कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बताएं कि एहसान क्या है। फरमाया, एहसान ये है कि जब तुम इबादत करो तो तुम्हें यह यकीन हो कि हम अल्लाह को देख रहे हैं, और फरमाया अगर तुम उससे नहीं देखते तो तुम्हें यह यकीन जरूर होना चाहिए कि वो भी हमें देख रहा है। अच्छा, अब हम नमाज पे ही ले लें थोड़ी देर के लिए। हम नमाज पढ़ते हैं, अगर हमें अल्लाह ये ताकत अता फरमा दे, कुछ बुजुर्ग ऐसे होते थे, याद रखिएगा, ऐसे बुजुर्ग हस्तियां गुजरी हैं जो नमाज पढ़ने खड़े होते थे ना, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यो, हुजूर पर सलाम करने के बाद वो नमाज रोक जाते थे, और जब तक उनको आगे से सलाम का जवाब नहीं आता था वो आगे नमाज नहीं पढ़ते थे। ये अल्लाह ने उनको शान अता फरमाई थी कि उनको आगे सलाम का जवाब भी आ जाया करता था।
तो ये फरमाया एहसान ये है कि तुम नमाज पढ़ो, इबादत करो, ये कि तुम अल्लाह को देख रहे हो, और अगर तुम नहीं देख सकते तो ये है कि तुम्हें वो देख रहा है, कि वो तुम्हें देख रहा है। उसने कहा फिर मुझे कयामत के बारे में बताएं। फरमाया जिससे इसके बारे में पूछा जा रहा है, पूछने वाला खुद उससे ज्यादा जानता है इसके बारे में। समझिएगा बात को। या रसूल अल्लाह मुझे कयामत के बारे में बताएं। फरमाया जो पूछने वाला है वो जिससे पूछ रहा है वो उससे ज्यादा जानता है। इसका मतलब ये नहीं है कि पूछने वाले का इल्म ज्यादा हो गया, इसका मतलब भी समझिएगा। मतलब ये है मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने इल्म गैब पर मोहर लगा रहे थे। फरमाया जो शक्ल बदल कर, भेष बदल कर आ जाए, हम जानते हैं ये कौन है। समझा बात को? हम जानते हैं ये कुछ बदनसीबी लगा ले लोगों की। उन्होंने कहा अगर हुजूर को पता होता तो हुजूर यूं क्यों कहते कि भाई उसको ज्यादा पता है। भाई सरकार बता रहे थे जो रंग भेष बदल कर आ जाए, अल्लाह ने मुझे ये इल्म दिया है, मैं जानता हूं तो कौन है, मैं जानता हूं। तो फरमाया ये कयामत के बारे में वो मुझसे ज्यादा जानता है जो मुझसे पूछ रहा है। अब सहाबा कराम के सामने तो वो शख्स था स्याह बालों वाला, सफेद लिबास वाला। अब सुनिएगा, फिर उसने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कयामत की कुछ निशानियां बता दें। अल्लाह अकबर, खुदा की कसम रोंगटे खड़े हो जाएं अगर कयामत की सारी निशानियां पढ़ने लगे। हमारे दरस कुरान का जो महदूद टाइम है वो मुकम्मल हो चुका है। इससे ज्यादा हम निशानियों की तरफ बढ़ेंगे तो बात बढ़ जाएगी। एक दो निशानियों पर गौर करिएगा। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कयामत की निशानियां ये हैं कि नौकरानी अपने मालिक के बेटे को जन्म देगी। क्या मुराद है? एक घर में काम करने वाली कनीज नौकरानी वो अपने मालिक के बेटे को जन्म देगी, अपने मालिक को जन्म देगी। और तुम देखोगे नंगे पांव वाले लोग, नंगे बदन वाले लोग, यानी बिल्कुल भूख गुर्बत के डूबे हुए लोग, और मैं बड़े आलो अयाल वाले लोग, बकरियां चराने वाले लोग लंबी लंबी इमारतें बनाने लग जाएंगे। ये कयामत की निशानियां होंगी। बकरियां चराने वाले लोग और जिनके पांव में जूते भी नहीं होते थे, वो जब बड़ी बड़ी इमारतें बनाने लग जाएंगे तो ये कयामत की निशानियों में से निशानी होगी। वो शख्स उसने ये सारी बातें पूछी, फिर वो आदमी चला गया। अब जनाब उमर कहते हैं मैं कुछ देर ठहरा, फिर मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया या रसूल अल्लाह ये कौन था? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया उमर इसे जानते हो? ये सवाल करने वाला कौन था? मैंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह जाने या अल्लाह का रसूल बेहतर जाने। अब सुनिएगा, आपको मजा आ जाएगा। फरमाया उमर ये सफेद लिबास वाला, ये सियाह बालों वाला कोई आम आदमी नहीं था, ये मलाइका का इमाम जिब्राइल अमीन था। ये तुम लोगों को इस्लाम सिखाने आया था। फरमाया ये जो सारे सवाल करके गया है, इस्लाम क्या है, ईमान क्या है, एहसान क्या है, कयामत क्या है, कयामत की निशानियां क्या है, ये कोई आम शख्स नहीं था, ये अल्लाह के फरिश्तों का इमाम जिब्राइल अमीन था, और वो तुम लोगों को इस्लाम और ईमान सिखाने आया था। अजीज दोस्तों, इस्लाम ये है, ईमान ये है जो मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है। दुआ है जो कुछ हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, अल्लाह इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।